Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So on daily basis, I am getting inquiries about RBI Grade B or any other exam in RBI. In my earlier videos, I also told you that as far as information from RBI is concerned, I talked with some Grade B people there, and they say RBI is having enough Grade B as of now. So they are not very sure whether RBI will go for Grade B this year or not. And their view is even if RBI Grade B notification comes, it may be very, very less vacancies, maybe even less than 50 or around 50. Because as per their manpower chart, they are not having any shortage of Grade B people at this stage. So, what about candidates? Those are awaiting Grade B or preparing for Grade B, or their dream is to join as Grade B. My advice is they may go for Grade A, still it is not very clear. They may go for assistant exam, still dates are not available. But we have clarity about other banking exams that is going to happen with the revised calendar of IBPS. So if you are unemployed, if you have not got the job but still having dream of RBI, so the first step should be to crack other examinations like IBPS PO, SBI PO, IBPS clerk or SBI clerk, or any insurance level examination, and then you may start thinking about RBI Grade B at a later stage. Because if you are only waiting for Grade B, investing your gainful time for preparation of Grade B, if it does not come, if the notification comes even with negligible vacancies, your entire effort will go into vain, because less than 50 vacancy means category wise this will be very, very less. So that will make the competition very, very difficult. So since you were seeking my advice, many of you sent me message yesterday also, and for last 1 week I am getting consistent messages. Sir, provide some update on RBI Grade B, Grade A assistant examinations. Already June is going to end. Nothing has happened. Earlier, some indications were that in the month of May, June, we may hear something about this, but nothing is happening. But when we talk to the employees, those are working in RBI, they are not very sure about the dates of examination because they feel that nothing is happening at the ground level. So even if some people are talking about the date, some people are talking about the examination, when we cross check with the employees of RBI, that is not being confirmed. So as a candidate, what you should do? You have to adopt a cautious approach. And the cautious approach is you should go for the examination that is available on table. Means we are now having IBPS calendar before us. SBI Junior Associate and SBI PO will definitely come. And some insurance exams dates are already available, and some more examinations may be pipeline. I think this is the time you should shift your focus to these, and again shift your focus to RBI Grade B or other examinations the moment you get clarity on it. But if some people want to prepare for RBI assistant, they may continue their preparation because the likelihood of RBI assistant is more by the year end or early next year. But other examination, I am not having any clear-cut information. Since you wanted my opinion, I am sharing my opinion with you because this channel is right advice at right time. We go on sharing the ongoing information with you. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कुछ दिनों से निरंतर मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं कि सर आरबीआई ग्रेड बी के बारे में कुछ न कुछ पता करके बताइए. आरबीआई ग्रेड ए की क्या स्थिति है वो भी बताइए.
और असिस्टेंट के बारे में आपका क्या विचार है ये भी बताइए। देखो, मैंने काफ़ी लोगों से बात की है आरबीआई में, काफ़ी हमारे कैंडिडेट हैं जो आरबीआई में काम करते हैं। जो मुझे सूचना मिल रही है उसके अनुसार अभी आरबीआई को ग्रेड बी की कोई मतलब इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, और क्योंकि इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन कब आएगा इसकी किसी के पास सूचना नहीं है। आएगा भी तो बहुत कम वैकेंसीज के साथ आएगा, ऐसा उनका अंदाजा है। अगेन अंदाजा है, सूचना नहीं है, एस्टिमेट है। अंदाजा है कि अगर मान लो नहीं ब्रेक करते अपनी परंपरा ग्रेड बी ना लेने की तो हो सकता है नेग्लिजिबल वैकेंसी के साथ एक नोटिफिकेशन निकाल दें। ग्रेड ए को लेके उत्साह है लोगों के अंदर कि शायद आ जाए, क्योंकि ग्रेड ए की उन्होंने मैन पावर प्लानिंग के अंदर वैकेंसीज दिखाई हुई हैं। अब वो इंटरनल से फिल करते हैं, डायरेक्ट लेते हैं, किस रेशो में लेते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। असिस्टेंट के लिए होपफुल इसलिए हो रहे हैं कि अल्टरनेट ईयर आता है, तो ईयर एंड या अगले साल के बिगनिंग में हो सकता है असिस्टेंट आ जाए। तो जो कैंडिडेट ग्रेड बी को एम करके पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी उनको सलाह यह है कि अभी ग्रेड बी को लेके बड़ी धूमिल स्थिति है। ऐसे में आपको रीओरिएंट करना चाहिए यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं। देखो, ऑलरेडी कई एम्प्लॉयड हैं और आरबीआई ग्रेड बी की ड्रीम लेके चल रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है, आपके पास टाइम है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी अर्नर हैं। पर यदि अनएम्प्लॉयड हैं तो आरबीआई का ड्रीम लेके चल रहे हैं, अच्छी बात है, मगर जो जॉब्स ऑफर पे हैं उन पे आपको पहले कंसंट्रेट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है अगर हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे तो कोई ना कोई जॉब हमारी मिल सकती है। एसबीआई पीओ, एसबीआई जूनियर एसोसिएट आएगा, वो भी ऑलमोस्ट निश्चित है, उसके अंदर भी आप ट्राई मार सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के कुछ एग्ज़ाम ऑलरेडी लाइंड अप हैं, कुछ हो सकता है और आ जाएं, उसके लिए आप ट्राई मार सकते हैं। पर आरबीआई ग्रेड बी को अभी बैक बर्नर पर डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ भी उसकी सूचना, जिसे हम टेंजिबल सूचना बोलते हैं, वो सामने नहीं है। अगर आ भी जाता है आरबीआई ग्रेड बी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं आएगा, ठीक है, हालांकि एम्प्लॉइज़ को ऐसा कुछ नहीं पता, पर आउटसाइडर कई लोग बोल रहे हैं। अगर आता भी है तो अगर वो बहुत कम वैकेंसीज के साथ आता है, मान लो 50 आता है या 50 से कम वैकेंसीज में आता है, तो कैटेगरी वाइज आप समझ लें कितनी वैकेंसीज होंगी और क्या लेवल ऑफ कंपटीशन होगा। तो क्या अनएम्प्लॉयड व्यक्ति जो पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड है उसके लिए ये गैम्बल करना, इतनी मेहनत करना क्या जायज़ है, ये सोचने वाली बात है। पहला तो उसको काम ये होना चाहिए ना कोई नौकरी लग जाए, तो एक कंफर्ट आ जाता है। ये जरूर है, कई लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलेगा, वो एक अपना अलग एस्पेक्ट है। पर इतना बड़ा गैम्बल करना कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और मैं अनएम्प्लॉयड रह के उन एग्ज़ाम्स की इंतज़ार कर रहा हूँ जिसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ये एक गैम्बल ही माना जाएगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि आपने मुझसे राय मांगी है तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि काफ़ी लोग मई जून के अंदर संभावना लेके चल रहे थे इन नोटिफिकेशंस की, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए स्थिति बिल्कुल ही हम ये कह सकते हैं धूमिल है इसके बारे में। ऐसे में उन एग्ज़ाम्स को छोड़ देना जिनकी स्थिति स्पष्ट है और उन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते रहना जिनकी स्थिति धूमिल है, मेरे हिसाब से तो इतना सही अप्रोच नहीं होगी। तो अभी जो एग्ज़ाम डाउन दी लाइन है, अगर आप उस पर फोकस कर लेंगे तो कुछ ना कुछ टेंजिबल आपको प्राप्ति हो जाएगी, ये मेरी सलाह है। बाकी जैसे जैसे सूचना मिलती है हम इस चैनल पे अपडेट करते हैं। कई बार पूरी सूचना नहीं भी मिलती, फिर भी हम वीडियोस डालते हैं, सिर्फ आपको जो भी स्थिति है, यथास्थिति है, उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए। क्योंकि जब बहुत सारी इंक्वायरीज आ जाती हैं एक ही टॉपिक पे, इंडिविजुअली जवाब देना मुश्किल हो जाता है, तो हम वीडियो के जरिए ही उसको कवर करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।